Hello everybody. How are you? All of you fine? Now our next chapter, that is not chapter 5th, but in old book it is 5th, but in new it is 6th chapter, and that is the subsidiary book. Okay. So what is the meaning of subsidiary book? Let's try to understand. पहले इसी के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर जो है हम लोग इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे. ओके. सब्सिडरी बुक. If translate in Gujarati, it is called Sahayak Pustako, means books which provide help to maintain the books of account. You know very well, in a day, hundreds of transactions has passed by a trader. So it is not possible, children, to maintain each and every transaction in journal. Otherwise, the volume of journal will increase like this way. Is it clear? So to sort out this problem, specifically journal has divided into certain part, and the books of account which support the journal is called the subsidiary book. Okay, so basically what is happen in business? These three things are main. First is the purchase, second is sell, third is purchase goods return, or fourth sold goods receive, and that means return. मतलब इसको हमने भेजा था, उसने हमें रिटर्न कर दिया. Okay, and apart from this, certain transactions are there, okay, which we write the journal, and that is called the journal proper. So basically, purchase, sales, purchase return, and sales return, these are the broad transactions which is taken place on daily basis. Okay, and that is the reason to give the specific entry in the specific book, your subsidiary books are maintained. So in subsidiary book, first thing is that you keep in your mind whatever credit transactions are there, that is the subject of subsidiary book. Doesn't matter whether it is purchase or sell, whatever is there. Is it clear? Just a minute, children. Okay, so whatever credit transactions are there, children, it is the subject of subsidiary book. Okay, so what kind of subsidiary book we maintain? So four types of subsidiary book, broad sense we maintain. One is the purchase book. Second is sales book. Third one is purchase return book, and fourth is sales return book. अब यहाँ पे आपको अकाउंट के प्रिंसिपल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको जर्नल की तरह एंट्री के टाइम पे आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है. ओके. Now see, children, here. So I told you about the purchase book, sales book, purchase return, sales return. Now how you have to maintain it? This is the way to maintain. Okay, यहाँ पे आपके कोई डबल एंट्री नहीं है, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं है. परचेज की एंट्री परचेज में,
सेल्स की एंट्री सेल्स में आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देनी है। फिर इसके टाइप हम लोग देखेंगे बाद में, बट इनिशियली यू शुड नो परचेज बुक, डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, यानी कि आप जिससे खरीद रहे हो बराबर है, परचेज कर रहे हो, तो हु इज योर सप्लायर, दैट नेम यू हैव टू मेंशन हियर बराबर है। सपोज आपने राम से गुड्स परचेज किया तो राम इज योर सप्लायर, सो हिज नेम विल कम हियर। Inward invoice number, when you purchase the goods is coming inside the business, so inward invoice number, what is that? Ledger folio and finally amount, whatever transaction are there, the total you are mentioned here. Similarly sales book, in sales book same way वही पैटर्न आप लोगों का यहाँ पे चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, अब ये सप्लायर का काम जब सेल करते हैं तो someone is there who purchase your goods, आप बेच रहे हो, सामने वाला कोई खरीद रहा है, तो आप सेलिंग कर रहे हो, तो सेल किसको करते हैं? लोग कस्टमर को करते हैं। सो हियर नेम ऑफ कस्टमर। ओके, यहाँ पे इनवर्ड इनवॉइस नंबर था, यहाँ पे आउटवर्ड इनवॉइस नंबर होगा यहाँ पे, क्योंकि गुड्स बाहर जा रहा है बिजनेस में से, बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पे लेजर फॉर यू एंड देन अमाउंट, व्हाटएवर कस्टमर्स आर देयर दैट यू राइट एंड मेक हियर टोटल। ओके, सिमिलरली इसका अपोजिट परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न भी ऐसे ही बनेगा चिल्ड्रन। परचेज रिटर्न में यहाँ पे जो है सेम ऐसे आएगा, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, ओके, और इनवॉइस की जगह यहाँ पे बनेगी डेबिट नोट, लेजर फोलियो ऐसे आएगा, अमाउंट ऐसे आएगा। ओके, एंड सिमिलरली सेल्स रिटर्न जब आप बनाओगे तो सेल्स रिटर्न में भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे होगा डेट, यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर, ओके, और फिर यहाँ पे डेबिट आउटस्टैंडिंग इसकी सॉरी आउटवर्ड इनवॉइस की जगह पे आपका यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट नोट, लेजर फॉर यू एंड अमाउंट। दैट इज द ओनली डिफरेंस टुडे। मैंने आप लोगों को जस्ट एक्सप्लेन यू द स्पेसिमेन एंड ऑल। ओके, इसके अलावा फिर सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम, मल्टी कॉलम, ऐसे अलग अलग कॉलम के जो है परचेज सेल्स बुक वगैरह बनते हैं, बराबर है। इसके अलावा जो है बैड डेट के टाइम पे या पेमेंट प्रॉपर नहीं होने के टाइम पे जो है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट भी बनाए जाते हैं। दैट ऑल आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन एज सम विल गो अहेड। ओके, तो वैसे वैसे हम इसको यहाँ पे सीखते जाएंगे। थोड़ा आप लोग रीडिंग ले लेते हैं। सो मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक मैंने ऐसे तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन एक बार टेक्सचुअल चले जाते हैं, सो वी विल बी क्लियर मोर अबाउट इट। Subsidiary books refer to the journal kept for specific transaction of similar nature. Subsidiary books are also known as the day books. A separate book of each subdivision is maintained. For example, recording for all credit purchase transaction. Purchase book is prepared. For according to all credit sales, sell transaction is prepared. Next is given type of subsidiary book. Okay, first of all, let's talk about the subsidiary book. Cash book. It is a simple. It is also one kind of subsidiary book. Cash book, single column cash book for recording the cash transaction. Second is the cash and bank column cash book. Okay, for record the cash and bank transaction or cash and discount transaction or bank or discount transaction. Third is the triple column cash book which record the cash book and discount transaction. फिर goods subsidiary book, that is the purchase book, sales book, purchase return and sales return book. For recording the credit purchase, recording the credit sales, recording the credit purchase return and recorded the credit sales return. Subsidiary book of bill, it is the bills receivable book and bills payable book, and last is your general proper. हम लोग मोस्टली रिसीवेबल और पेबल बुक नहीं मेंटेन करते हैं, हम लोग भी यहाँ पे सिर्फ इसको सीख रहे हैं, बाकी सबका सब हम लोग जो है करेंगे। ओके, सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ये बनाने के पीछे लॉजिक क्या है? तो वॉल्यूम को रिड्यूस करना, बराबर है, ट्रांजैक्शन के वॉल्यूम को रिड्यूस करना। फिर टाइप्स ऑफ गुड सब्सिडरी बुक में परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। परचेज बुक मतलब क्रेडिट परचेज के लिए, सेल्स बुक्स क्रेडिट सेल्स के लिए, परचेज रिटर्न क्रेडिट परचेज रिटर्न के लिए और सेल्स रिटर्न क्रेडिट सेल्स रिटर्न के लिए। फिर परचेज बुक का डिवीजन किया हुआ है, सिंपल परचेज बुक, कॉलमनर परचेज बुक। कॉलमनर परचेज बुक के दो पार्ट किए हुए हैं, परचेज बुक विद कॉलम अकॉर्डिंग द टाइप ऑफ गुड्स एंड गुड्स एंड एक्सपेंस कॉलमनर। इसमें जीएसटी वगैरह आपको कैसे डिडक्ट करना है, दैट एवरीथिंग विल इंक्लूड इन इट। सिमिलरली सेल्स बुक को भी ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किया, सिंपल सेल्स बुक, कॉलमनर सेल्स बुक।
कॉलमनर सेल्स बुक में सेल्स बुक विद कॉलम अकॉर्डिंग द टाइप्स ऑफ गुड्स, जैसे रेफ्रिजरेटर, टीवी, फ्रिज, ऐसे। ओके, एंड कॉलमनर सेल्स बुक दूसरे टाइप में एज पर द कॉलम ऑफ एक्सपेंस, गुड्स, कैरेज वगैरह। ओके, मैं सबका आप लोगों को एक एक स्पेसिमेन डेफिनेटली दूंगा, सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, में आपको ढंग से समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न बुक। तो उसके भी जो है दो पार्ट है, सिंपल परचेज रिटर्न बुक, कॉलमनर परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक विद कॉलम अकॉर्डिंग द टाइप्स ऑफ गुड्स, एंड नेक्स्ट इज द परचेज रिटर्न बुक विद द गुड्स एंड एक्सपेंस। सिमिलरली सेल्स रिटर्न बुक वो भी ऐसी ही है, सिंपल सेल्स रिटर्न बुक एंड कॉलमनर सेल्स रिटर्न बुक। कॉलमनर सेल्स रिटर्न बुक के दो पार्ट किए हुए, कॉलम सेल्स रिटर्न बुक अकॉर्डिंग द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड कॉलमनर सेल्स रिटर्न बुक अकॉर्डिंग टू द गुड्स एंड एक्सचेंज। ओके, इसके अलावा ये दो चीजें और सीखनी, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ओके, दिस मच इज देयर फ्रॉम नेक्स्ट पार्ट। आई विल एक्सप्लेन यू द सम्स। आपको अगले वीडियो में आपको सम्स देखने को मिलेंगे, सो यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक very systematically and very nice. Okay, bye, see you, take care, bye.